Welcome everybody. This is our third class in JEE Mains previous year question series for chapter System of Particles and Rotational Motion, also known as Rotational Mechanics. And we have covered two videos previously in this series, and all of those can be found on our YouTube channel. There is dedicated playlist for these videos. Name of that playlist is JEE Mains previous year questions that can be found on playlist section of our YouTube channel. Name of channel is Point Basics. We have also started similar series for NEET previous year questions, so you can also go to our channel in playlist section. There is separate playlist for NEET videos also. You can go and check out those videos also. If you like these videos and found them useful, then do press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. And also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you can, whatever is possible for you. With this amount in future, we will be able to get new books and better computer hardware so that we able to provide you better quality videos. So with this, let's start today's video. In previous video, we have completed up to question number 17, I think, and today we are going to start further. Yes, this was from the last video, and today we have to go further. So let's start next question. So here is the question. Let us make it slightly smaller resolution. Yes, so that we can easily answer it. So a thin rod of length L lying along the axis with its end at x is equal to 0 and x is equal to L. The linear density mass per unit length varies as, ये density की value हमें given है, where n can be 0 or any positive number. If center of xcm of the center of mass of the rod is plotted against n, which of the following graph a best approximate value of xcm on n? Means first of all हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें xcm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसका हमें रिलेशन देखना है कि n पे कैसे वो डिपेंड करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ग्राफ को प्लॉट करना होगा. और हमें लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास बाय लेंथ और रो एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है k x by l पावर n. सो डूइंग द सेम जो हम इस क्वेश्चन के टाइप में नॉर्मली करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक रोड कंसीडर करेंगे. ये हमने एक रोड कंसीडर कर ली. इस रोड के अब हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं. पॉइंट ए ले लेते हैं जो कि 0 0 पे होगा, और कोऑर्डिनेट बी ले लेते हैं जो कि l 0 पे होगा, बिकॉज जो रोड है उसकी टोटल लेंथ इज l. एंड आल्सो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे. स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ क्या होगी dx, और जो कि कितने डिस्टेंस पे होगा, x डिस्टेंस पे होगा पॉइंट ए से. सो इस पॉइंट के लिए जो डेंसिटी होगी, मास डेंसिटी यानी कि मास बाय लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dx, क्या हो जाएगा, k टाइम्स x बाय l पावर n. और इसका स्मॉल m की बात जो मास है, वो स्मॉल m dm लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाद में. तो यहाँ से dm की वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू k टाइम्स x बाय l n dx. नाउ अब हम xcm निकाल सकते हैं. xcm के लिए फॉर्मूला होता है x dm बाय इंटीग्रल dm, और जो x है वो यहाँ पे 0 टू मैक्सिमम l तक जा सकता है, तो लिमिट्स विल बी 0 टू l. So putting the values 0 to l, x k x by l and dx, 0 to l k x n by l and
dx, जो k है और k है कैंसिल आउट हो जाएगा और साथ में l की पावर जो n है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो नेट रिजल्ट है वो बचेगा, इट विल बी xcm is equal to integral 0 to L x n plus 1 dx by integral 0 to L x n dx, और जो ये यहाँ पे आएगा xcm। ये जो L की पावर n थी वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और k यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली x बचेगा और यहाँ पे नीचे x बचेगा, जस्ट पावर का डिफरेंस होगा। तो जब आप इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे इट विल बी x n plus 2 by n plus 2 डिवाइडेड बाय x n plus 1 by n plus 1, और दोनों में लिमिट सेम ही रहनी है, L to 0। 0 पुट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी, चीजें जीरोज हो जाएंगी, तो ओनली हम यहाँ पे L पुट करते हैं। सो n by 2 नीचे, n plus 1 ऊपर, इंटू L पावर n plus 2 by L पावर n plus 1, और यहाँ से हमारे पास आएगा n plus 1 by n plus 2 इंटू पावर इंटू L की पावर 1 बचेगी। सो ये रिलेशन होता है हमारे पास xcm, जो कि n पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला आता है n plus 1 by n plus 2 इंटू L। तो जब n की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं, बिकॉज हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 plus 1 by 0 plus 2 इंटू L, यानी कि n by 2। सो 0 पे जब n 0 है xcm सेंटर ऑफ मास L by 2 पे लाई करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सभी के सभी ग्राफ्स में यहाँ पे भी L by 2 है, यहाँ पे भी L by 2 है, यहाँ पे भी L by 2 है, बट ऑप्शन सी यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे L से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी तो यही से रॉन्ग हो जाता है। नाउ अगर हम यहाँ पे xcm इनफाइनाइट पुट करते हैं, n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट प्लस 1 बाय इनफाइनाइट प्लस 2 बाय इनटू L, और इनफाइनाइट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, इनफाइनाइट ही रहेगा। वैसे बाय द वे अगर आप यहाँ पे नॉर्मल करते हो तो ये आंसर गलत आएगा आपका। वाई? बिकॉज इन्फिनिटी को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तब भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसके लिए आपको लिमिट सोल्व करनी पड़ेगी, जो आपका ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है n plus 1 by n plus 1 2 है। तो आप इसमें क्या करोगे, आप यहाँ से n को कॉमन ले लोगे, तो इट विल बी 1 plus 1 by n, और n फिर से कॉमन ले लोगे 1 plus 2 by n इंटू L। n से n कैंसिल होगा, अब आप इसमें इनफाइनाइट पुट करो, तो 1 by इंफिनिटी 0 हो जाएगा, नीचे 2 by इंफिनिटी 0 हो जाएगा, और ये आपको देगा n। अगर आप इससे करते हो तो इट विल बी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट डिवाइड L, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 1 नहीं होता, ये अगेन इनफाइनाइट ही होता है। तो ये एक्चुअली एक रॉन्ग मेथड है करने का, मैथमेटिकली प्रॉपर वे में आप इसको ऐसे करोगे, तो मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे n की इनफाइनाइट वैल्यू पे वैल्यू L के इक्वल होनी चाहिए, इन शॉर्ट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये आंसर गलत हो जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। जो ऑप्शन ए है वहां पे ग्रेजुअल इंक्रीज है, और ऑप्शन जो डी है यहाँ पे सडन इंक्रीज है। तो अगर आप ये देखोगे जो हमारी वैल्यू आई है, इट इज xcm इज n plus 1 by n plus 2 into L। अगर आप n को सपोज कीजिए 2 पुट कर देते हो, तो इट विल बी 3 प्लस 3 by 4 L, यानी कि 0.75 ऑफ L। और अगर आप देखो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे स्टार्टिंग में कांस्टेंट ही रह रहा है, और उसके बाद सडनली इंक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, जो कि यहाँ पे होगा कि आप वैल्यूज पुट करते जाओगे और धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A circular disc of radius r is removed from bigger circular disc of radius 2r such that circumference of the disc coincides। circumference coincide करता है,
The center of mass of the new disk is alpha by r from the center of bigger disk. The value of alpha, फाइंड आउट करनी। तो आपके पास यहाँ पे दो डिस्क हैं। अब हम डिस्क का जो ओवरव्यू ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर उससे ले रहे हैं, परपेंडिकुलर प्लेन वाला ओवरव्यू ले रहे हैं। सपोज ये हमारे पास पहली वाली डिस्क है, ठीक है, और इसमें से इसकी रेडियस 2r है, तो एक दूसरी डिस्क रिमूव की गई है जिसकी रेडियस कितनी है, r। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं। हाइपोथेटिकली सपोज ये कोऑर्डिनेट है, मींस ये डिस्क का सेंटर है और ये हमने इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। अब जो डिस्क रिमूव की गई है उसकी रेडियस r है, यानी उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, उसका डायमीटर 2r हो जाएगा। और 2r क्या है, इज द रेडियस ऑफ बिगर डिस्क। ये जो वैल्यू आपकी ये 2r है और ये जो डिस्क रिमूव की गई है उसके डायमीटर के इक्वल होगी। मींस आपकी जो रिमूव डिस्क है वो यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगी बिकॉज वो सर्कमफ्रेंस को टच करती है एज पर स्टेटमेंट। सो दिस विल बी रिमूव डिस्क। साइज थोड़ा स्मॉल होगा उसका, अप्रोक्सीमेटली दिस, और इस डिस्क की रेडियस होगी r। ये जो डिस्टेंस है इट इज r। सो लेट अस राइट, अगर आप ये जो पॉइंट है इसको आप पॉइंट O लेते हो, इसको आप पॉइंट A लेते हो, तो O पॉइंट आपका कहाँ पे है, 0 0 पे लाई करता है। तो A पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इट विल बी r, 0 पे लाई करेगा बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये r के इक्वल है और जो टोटल डिस्टेंस है वो 2r के इक्वल। नाउ अज्यूमिंग कि सारा सिस्टम हमारा जो है यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क, और डिस्क क्या होती है, 2D होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, स्मॉलर डिस्क का एरिया कैलकुलेट करना होगा, बिगर डिस्क का एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो बिगर डिस्क की अगर बात करें तो जो बिगर डिस्क है इसका एरिया हो जाएगा 5 टाइम्स 2r² यानी कि 4πr², और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है 0,0। ये हमने अज्यूम कर लिया कि 0,0 है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। जो स्मॉलर डिस्क है, स्मॉल डिस्क, इसको हमने A1 ले लिया, इसके लिए A2 बना दिया हमने। इसका एरिया हो जाएगा 5 टाइम्स r² और πr² और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं r,0। बिकॉज इस डिस्क को रिमूव किया गया है तो इसके एरिया को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। सो XCM हो जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 divided by A1 plus A2. So A1 is 4πr² into 0 minus πr² into r divided by 4πr² minus πr²। इसको सोल्व करते थे, 0 देगा, ये माइनस πr³ देगा, 0 माइनस πr³ डिवाइडेड बाय 3πr²। आप इसको सोल्व करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, r² से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -r/3, यानी कि x सेंटीमीटर का डिस्टेंस किस पॉइंट से, 0 0 पॉइंट से, बिकॉज सारी कैलकुलेशन इसके हिसाब से की है, इज इक्वल टू -r/3, यानी कि वो किस डायरेक्शन में लाई करेगा, वो लेफ्ट हैंड में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लाई करेगा। तो उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गया, r/3, और इसी r/3 को आपको लिखना है किस फॉर्म में, α/r में की फॉर्म में लिखना है, अल्फा इंटू 1/r की फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, it can be written as disk is
अल्फा बाय आर, इट्स नॉट अल्फा बाय आर, इट्स अल्फा आर। ये मिसप्रिंट है शायद यहाँ पे, इट शुड बी अल्फा आर, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider two particle system of particle having masses m1 and m2। दो पार्टिकल है, मास m1 m2 हो गया। if first particle is pushed toward the center of mass by distance d, by what distance should the second particle move so to keep the center of mass at the same position। सो इसको आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट वे में क्या है कि पहला पार्टिकल m1 है, उसकी डिस्प्लेसमेंट d है। दूसरा पार्टिकल m2 है, उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम x मान लेते हैं। तो क्या होगा, m1d इज इक्वल टू m2x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी m1 बाय m2 इंटू d। सो दिस इज द शॉर्टकट वे। और अगर आपको प्रॉपर वे में विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वे में सोल्व करना है, तो सपोज कीजिए कि ये सेंटर ऑफ मास है एक्सियम, यहाँ पे पहला पार्टिकल है m1 और उसका डिस्टेंस है x1, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है m2 और उसका डिस्टेंस है x2, और x सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 0 0, कि वो सेंटर पे है, 0 0 पे, ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन पे होने की वजह से अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो 0 इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, और जो x1 है ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। वाई नेगेटिव, बिकॉज ये ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में मेजर किया गया, डिवाइड बाय m1 प्लस। सो ये इधर जाके 0 हो जाएगा और आपके पास बचेगा m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। नाउ आपने क्या कर दिया, जो m1 है उसको डिक्रीज कर दिया, सॉरी x1 को आपने डिक्रीज कर दिया बाय डिस्टेंस d। एज पर स्टेटमेंट ये बोला गया है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उसको आपने सेंटर की तरफ मूव कर दिया बाय डिस्टेंस d। तो यानी कि x1 की वैल्यू में से d में x1 की वैल्यू से d का डिक्रीमेंट हो गया। तो सिमिलरली उसको बैलेंस करने के लिए x2 की वैल्यू से भी आपने x का डिक्रीमेंट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अभी x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 माइनस डी, और x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x। सो m1 x1 माइनस d इज इक्वल टू m2 x2 माइनस x। तो इसको सॉल्व करते हैं, m1 x1 माइनस m1 d इज इक्वल टू m2 x2 माइनस m2 x। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, यहाँ से आप देख सकते हो, कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव साइन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास बचेगा m1d इज इक्वल टू m2x, और ये सेम रिलेशन है जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया। सो m1 by m2 into d, ऑप्शन C is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body A of mass m while falling vertically downward under gravity breaks into two parts of body B of mass 1/3 m and body C of mass 2/3 m। Center of mass of B and C taken together shift compared to that of B afterwards। तो मीन्स ये पूछा गया है कि एक बॉडी थी जो डाउनवर्ड फ्रीली फॉल कर रही थी, फिर वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, m/3 में और 2/3 m में। तो ये बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना शिफ्ट होगा। तो बिकॉज यहाँ पे ओनली क्या है, इंटरनल फोर्सेज इन्वॉल्व है, इंटरनल फोर्सेज इन्वॉल्व, तो ड्यू टू दैट सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आता, सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट नहीं होगा, ना वो हाइट पे डिपेंड करेगा, ना ही किसी चीज पे डिपेंड करेगा, सेंटर ऑफ मास एज इट इज रहेगा, कोई शिफ्ट नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, a T-shaped object with dimensions shown in the figure is lying on smooth floor. A force F is applied at the point P parallel to AB such that object has only translational motion without rotation. Find the location of the P with respect to C।
तो ये बोला गया है कि यहाँ पे ओनली ट्रांसलेशनल मोशन होना चाहिए, रोटेशनल नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन मीन्स जो टॉर्क है वो क्या होनी चाहिए, जीरो। टॉर्क जीरो होनी चाहिए। और टॉर्क का मतलब क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यानी कि फोर्स और जो जो आपका ये यहाँ पे डिस्टेंस होगा और फोर्स होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कैसे हो सकता है, टू वेज में जीरो हो सकता है, मीन्स थ्री वेज में। नंबर एक, केस वन की आर जीरो हो जाए, नंबर दो एफ जीरो हो जाए, नंबर तीन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो थीटा तो यहाँ पे 0 डिग्री नहीं हो रहा, बिकॉज जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये केस तो नहीं है, थीटा 90 डिग्री है। तो और फोर्स आपने अप्लाई किया है तो फोर्स भी जीरो नहीं हो सकता। तो व्हाट वी कैन डू, हम आर को जीरो कर सकते हैं। और आर को जीरो कैसे कर सकते हैं, इफ वी अप्लाई एफ ऑन एक्स और ऑन सेंटर ऑफ मास। अगर हम फोर्स को सेंटर ऑफ मास से अप्लाई करें और बॉडी के आपके पास कोई फिक्स एक्सिस ना हो रोटेशन के लिए, तो बॉडी सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करती है। और अगर आपने फोर्स को सेंटर ऑफ मास के ही अराउंड लगा दिया तो उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से यानी इटसेल्फ से जीरो हो जाएगा और कोई टॉर्क नहीं होगी। लेट मी एक्सप्लेन अगेन आवर थ्योरी और आइडिया। ये सपोज कीजिए आपके पास एक कोई बॉडी है, इस बॉडी का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है ना। जो ये बॉडी जब रोटेट करेगी तो ये टू वेज में रोटेट कर सकती है। नंबर एक, इसके पास कोई फिक्स पॉइंट हो, जैसे सपोज आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, पॉइंट ए। अगर इस फिक्स पॉइंट के अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है तो जो भी फोर्स इस पॉइंट ए पे लग रहा होगा वो फोर्स कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज जो डिस्टेंस है वो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर किए जाएंगे। और अगर आप इसी पॉइंट पे फोर्स लगा दो तो उसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। नाउ अगर बॉडी के पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है रोटेशन के लिए, तो ये पॉइंट है ही नहीं बॉडी के पास, तो बॉडी किसके अराउंड रोटेट करेगी, सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करेगी, अगर कोई अदर पॉइंट नहीं है रोटेशन का। और जब वो सेंटर मास ऑफ के अराउंड रोटेट करे तो अगर आप फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही लगा दोगे तो वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा और बॉडी रोटेट नहीं कर सकेगी। सो दिस इज द थ्योरी और आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है सिस्टम का और फिर आपको वो वहां पे फोर्स लगाना है। और किसके रिस्पेक्ट में मेजर करना है, पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में मेजर करना है। तो पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में अगर मेजरमेंट करते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 0। जो आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा 2l 0। और बिकॉज ये टोटल रोड की लेंथ l है, तो अगर आप b पॉइंट निकालना चाहो तो b पॉइंट हो जाएगा 2l l/2। और जो a पॉइंट हो जाएगा इट विल बी 2l -l/2। ओके, सो अब जो आपकी यहाँ पे आपके पास टू रोड्स हैं, यहाँ पे हम एक और नेमिंग कर देते हैं डी। इस पॉइंट को हम डी बोलते हैं। आपके पास दो रोड है, यहाँ पे दो पार्ट से बनी हुई है रोड। एक तो ए बी पार्ट से बनी हुई है और एक सी डी पार्ट से बनी हुई है। जो ए बी पार्ट है, बिकॉज जो रोड है यहाँ पे हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं, तो ए बी पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, पॉइंट डी पे लाई करेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 2l 0 पे। और जो सी डी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे बीच में लाई करेगा, जो कि क्या होगा l 0। ये कैसे आया, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0 + 2l, नॉट 2l, सॉरी वी मेड अ मिस्टेक, 0,2l होगा, बिकॉज ये y कोऑर्डिनेट है। ये ऐसे y एक्सिस है, ये ऐसे x एक्सिस है, तो ये भी हमने गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, लेट मी करेक्ट। और ये भी हमें दोबारा से लिखना होगा सब कुछ। यहाँ पे ओनली y डायरेक्शन चेंज होगी, सो इट विल बी 0,2l। यहाँ पे आप ऐसे बढ़ोगे तो l/2 इंक्रीज कर लोगे, 2l/2 इंक्रीज कर लोगे, बिकॉज टोटल लेंथ l है तो ये l/2 होगा जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे।
So it will be L by 2 comma 2L, and this will be minus L by 2 comma 2L. सो ए बी का सेंटर ऑफ मास होगा 0,2L और बी सी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बीच में वहीं पे लाई करेगा और वो होगा 0 प्लस 0 0 सॉरी सी डी आई और 0 प्लस 2L है। तो नाउ अब आपके पास दो पॉइंट आ जाते हैं, लेट मी रिप्रेजेंट। और देखिए दोनों का मास अलग अलग है। जो ए बी रोड है उसका लेंथ L है और बी सी रोड की लेंथ 2L है। तो अगर हम मान लें यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, तो जो ए बी रोड है उसका मास हम अगर m मानेंगे तो बी सी रोड का मास 2m हो जाएगा। वाई? बिकॉज उसकी लेंथ डबल है। लेंथ यहाँ पे 2L है, यहाँ पे लेंथ ओनली L। तो अब आपके पास दो पॉइंट आ जाते हैं। एक पॉइंट कौन सा है? जो कि 2m मास का है, जो कि सेंटर ऑफ मास सी डी का है और उसके कोऑर्डिनेट्स 0,L है। एक पॉइंट आपके पास डी पॉइंट है जिसका मास m है और उसके कोऑर्डिनेट्स 0,2L है। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? ये दो सेंटर ऑफ मास है हमारे पास, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? XCM इज इक्वल टू, और देखिए x में तो जीरो ही आएगा, ओनली y वैल्यू आएगी, तो हम y वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2ml बाय m प्लस n 3m, सो 4ml बाय 3m कैट करके हमें मिलेगा 4/3L। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और ये YCM होगा बिकॉज XCM तो जीरो ही आएगा। तो जो ये वाला पॉइंट आया आपका सेंटर ऑफ मास, दोनों पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे आता है, तो उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0,4/3L और डिस्टेंस निकालोगे आप 4/3L ही आएगा। सो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A bead of mass m stays at point PAB on the wire bent in shape of a parabola y is equal to 4a cc x square on the rotating with angular speed omega shown in the figure. Value of omega is, omega की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसको जूम आउट करते हैं, एडजस्ट। सो एज पर मेंशन कि y इज इक्वल टू क्या है? 4c x स्क्वायर, और यहाँ पे बात हो रही है पॉइंट ए बी की। पी पॉइंट है ए बी, तो यहाँ पे y की वैल्यू b है और x की वैल्यू a है। सो b इज इक्वल टू 4c a स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाता है। नंबर 2, नाउ लेट अस ड्रा दिस डायग्राम सो दैट हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कि इसमें कंपोनेंट रेजोल्यूशन कैसे किया जाएगा। ओके, सो हियर इट गोस। ये हमारे पास y एक्सिस बन जाता है और ये हमारे पास x एक्सिस ऐड हो जाता है। इस पे कर्व ऐड कर लेते हैं। सो वी एडेड द कर्व हियर और इस कर्व के ऊपर एक हमारे पास पॉइंट है, ये सपोज पॉइंट है। नाउ अब ये पॉइंट जो रोटेट कर रहा है वो समथिंग लाइक ऐसे रोटेट कर रहा है। यहाँ पे रोटेशन क्या है? इस प्लेन में ओमेगा की वैल्यू, तो इसके लिए जो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू ये होगी, रोटेशन रेडियस क्या होगी? विल बी इक्वल टू दिस। और बिकॉज ये पॉइंट क्या है? पी ए कोमा बी है और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स को रिप्रेजेंट करती है, एक्स कोऑर्डिनेट को। तो ये रोटेशन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ए।
नाउ कमिंग टू फोर्सेस, यहाँ पे कौन से फोर्स लग रहे हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फोर्स लगेगा mg जो कि डाउनवर्ड होगा, और एक फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ऐसे होगा, जिसको हम fc से रिप्रेजेंट करेंगे, fc, और ये होगा mg। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एंगल्स कवर करने होते हैं, एंगल्स के रेशियोज निकालने होते हैं और वैल्यूज को पुट करना होता है, पर आप यहाँ पे एंगल कौन सा लेंगे इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा ऑलवेज। सो व्हाट वी डू, हमें ये पता है कि अगर हमारे पास एनी कर्व है, अगर हमारे पास कोई कर्व है, तो जो उसका स्लोप होता है वो स्लोप किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो कर्व है y इज इक्वल टू 4cx², तो अगर हम इसका स्लोप कैलकुलेट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि dy बाय dx ये कैलकुलेट करते हैं, तो इट विल गिव अस 4c इंटू 2x और 8cx, ये हमें देता है इसके स्लोप की वैल्यू, और स्लोप क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा होगा, और स्लोप की वैल्यू यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू dy बाय dx की वैल्यू एट पॉइंट p पॉइंट p पे x और y की वैल्यू a एंड b है, तो ये हो जाएगी 8ca। ओके, सो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाती है। नाउ अब ये टेंजेंट थीटा होगा कहाँ पे, इस कर्व के अंदर, तो वो आपको ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, जो पॉइंट है पॉइंट से आपको एक लाइन लेके जानी है। लेट मी शो हाउ, हम आपको एक लाइन लगा के दिखाते हैं विद दी, आई थिंक ब्लू कलर ओके रहेगा, यस। सो आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, जो लाइन इस पॉइंट से पास होती है, ये ब्लू लाइन जो पास हो रही है, और अगर हम इसको आगे नीचे ग्राउंड से वापस टच करके एक ट्रायंगल बना दें, और ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पे दिस इज, हमने ए बी यूज नहीं किया अभी, तो ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी टेंजेंट थीटा क्या है, ए बी बाय बी सी, और वही आपके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 8ca। तो इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 8ca। नाउ इफ ये, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और जो ये वाला एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, नाउ अब अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल कैसे, बिकॉज हमें ये पता है कि ये वाला फोर्स Fc है, और जो डाउनवर्ड फोर्स है ये वाला फोर्स mg है, देन इन दिस सिनेरियो, नाउ एज आपको पता है कि जो पार्टिकल है उसकी रोटेशन अराउंड वाई एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, मींस जो पार्टिकल है वो आपकी स्क्रीन से इन एंड आउट रोटेट हो रहा है, तो मींस पार्टिकल का इस कर्व के ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड कोई मूवमेंट नहीं है, मींस जो अपवर्ड फोर्सेस हैं और जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या करने चाहिए, बैलेंस करने चाहिए। यानी कि अपवर्ड फोर्सेस कौन से होंगे, जो लाइन AC, और जो ये हमारे पास AC लाइन है, जो ब्लू लाइन है, इसके अलोंग जो फोर्सेस होंगे वो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे। सो AC में अपवर्ड फोर्स कितना होगा, FC का एक कंपोनेंट होगा जो कि होगा FC cos थीटा, FC cos ऑफ थीटा, और जो mg का AC के अलोंग कंपोनेंट होगा इट इज mg 90 माइनस थीटा, mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि mg sin। तो यहां से हम लिख सकते हैं that fc by mg is equal to sin by cos टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज 8ca। सो fc by mg is equal to 8ca, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारे पास होती है mr ओमेगा स्क्वायर, सो m
और आर की वैल्यू इस पॉइंट के लिए रेडियस की वैल्यू क्या है ए, सो एम ए ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी इज इक्वल टू 8 ए सी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर है ए ओमेगा स्क्वायर विल गिव अस 8 सी ए जी, और ए से ए भी कैंसिल कर सकते हैं और ओमेगा आ जाएगा और रूट ऑफ 8 सी जी। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इसको आगे फर्दर लिख सकते हैं 2 रूट 2 सी जी, सो 2 रूट सी जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ओके, तो हम इसको इतना ही रखते हैं, ऑप्शन हम बाद में चेकआउट कर लेंगे। A cylindrical vessel containing a liquid is rotated about axis so that liquid rise at its side as shown in the figure। यहाँ पे जो लिक्विड है वो राइज कर जाता है और h हाइट पे राइज करता है। The radius of the vessel is 5 centimeter and the angular speed of rotation is omega radian per second। The difference in height is h of the liquid at the center of the vessel and the side will be। तो हमें यहाँ पे h की वैल्यू निकाल फाइंड आउट करनी कि ये जो हाइट है ये कितनी होगी। सो हम इसका जो ये वाला पार्ट है सिर्फ इस वाले पार्ट को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, सो दैट हम इसको सोल्व कर पाए। सो दिस विल बी द कर्व, कुछ इस टाइप की कर्व होगी हमारे पास, और इसके अराउंड हमारे पास वाटर है। नोट दिस वन विदाउट फिल। सो दिस यहाँ पे हमारे पास वाटर है और जो ये हाइट है दिस इज h, और जो रोटेशन की स्पीड है, रोटेशनल वेलोसिटी है, दैट इज ओमेगा। नाउ वी नो जो रोटेशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है और ये पी बी है और ये सपोज पी सी है, तो हमें नॉर्मल प्रेशर इक्वेशन से पता है दैट जो पी बी होगा वो क्या होगा, पी सी प्लस एच रो जी, ये इक्वेशन होगी। और जो पीसी होगा, पीसी किसके इक्वल होगा, पी एटमॉस्फेयर के इक्वल। और सिमिलरली जो पी ए है वो भी लिक्विड सरफेस पे आता है, तो इट आल्सो इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर। एंड नाउ यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, जो रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन की वजह से पी ए और पी बी में भी एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू, तो पी बी इक्वल टू पी ए प्लस रो ओमेगा स्क्वायर रेडियस स्क्वायर बाय 2। ये रोटेशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और ये हाइट की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ना। अब हमें पता है कि दोनों साइड देखिए पी बी इक्वल है तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई, और पी सी और पी ए भी इक्वल है बिकॉज पी सी पी नोड के इक्वल है और पी ए भी पी नोड के इक्वल है, मीन्स ये जो दोनों टर्म है ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। और अगर हम दोनों टर्म को इक्वेट करते हैं तो एच रो जी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, रो से रो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी रो, रो से रो कैंसिल होगा, सो एच आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 ऑफ जी। आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है आई थिंक, यस 5 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 25 ओमेगा स्क्वायर 2g, और ये वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, प्रोवाइडेड आप जी की वैल्यू भी सेंटीमीटर्स में यूज करें। So 25 omega square by 2g, option C is the right answer।
Next question. A spring mass system, mass m, spring constant k, and natural length l rest in equilibrium on horizontal disk. The free end of the spring is fixed at the center of the disk. If the disk together with spring mass system rotates about an angular velocity of omega, the relative change in the length of the spring is best given by the option. तो best given by the option हमें बताना है कि चेंज कितना आएगा। और यहाँ पे देखिए स्प्रिंग का मास है, अगर स्प्रिंग मासलेस होता तो रिलेटिव चेंज इन लेंथ होता 0, बिकॉज स्प्रिंग पे अगर मास होता नहीं होता तो उसके ऊपर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, दैट्स व्हाई उसकी लेंथ में चेंज आएगा। So let us have a disk with fill. तो सपोज ये हमारे पास एक डिस्क है और इसके सेंटर पे हमने एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, अटैच किया हुआ है, और वो स्प्रिंग समथिंग लाइक ऐसे। अब जब आप इसको रोटेट करवा देते हो तो स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आएगा, ड्यू टू, क्यों चेंज आएगा, बिकॉज उस पर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स स्प्रिंग के ऊपर लग रहा होगा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इट विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ये आर कौन सी वैल्यू है, जो कि एक्सटेंशन वैल्यू है, एक्सटेंडेड वैल्यू। सो मींस सपोज कीजिए उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी एन, जब वो रोटेट होने लग गया तो उसके अंदर एक्सटेंशन आ गया एक्स का, तो इसकी जो रेडियस बन जाएगी रोटेशन के लिए इट विल बी एन प्लस एक्स। सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इट विल बी एम एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। एल ओरिजिनल लेंथ है और एक्स उसके साथ अंदर जो एक्सटेंशन हुई है। और ये जो फोर्स है स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा, बैलेंस करेगा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करके, जो कि क्या होगा k टाइम्स x, यानी कि k टाइम्स एक्सटेंशन। तो अगर दोनों को इक्वेट कर दें, सो m l प्लस x ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k x, और हमें चेंज इन लेंथ निकालना है, रिलेटिव चेंज इन लेंथ, यानी कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वैसे, तो x आ जाएगा m l प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय k, और हमें एक अप्रोक्सीमेशन भी गिवन है ऑलरेडी कि k इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, k ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है, एंड वी हैव टू फाइंड रिलेटिव चेंज, तो हमें एक्चुअली x बाय l निकालना है। सो व्हाट वी डू, दोनों साइड को l से डिवाइड कर देते हैं, x बाय l विल बी इक्वल टू m l ओमेगा स्क्वायर प्लस m x ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय l इंटू k। तो यहाँ पे सेपरेट आउट कर लेते हैं, एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय एल के प्लस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय एल के। सो इसके साथ हम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट वी डू, हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं और अब हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, x को और l को सेपरेट आउट कर लेते हैं। सो एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, x को अलग करते हैं, एम एल ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज हमें x बाय एल फाइंड आउट करना है, सो इट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय एल। सो दिस इज द रिलेशन, एंड एज पर गिवन कि k इज ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर, सो यहाँ पे हम m ओमेगा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं k के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर k। यहाँ पे हम ये अप्रोक्सीमेशन नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, दैट्स व्हाई हमें इसको लीव आउट करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी m ओमेगा स्क्वायर बाय k, और अगर हम चेक करते हैं
सो ऑप्शन सी हमारा मैच होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is fixed to one of its end of a light spring having force constant k and unstretched length l. The other end is fixed. The system is given angular speed omega about the fixed end and spring such that it rotates in a circle in gravity free space. तो कोई gravity नहीं है. Then the stretch in the spring बताना है हमें. अगेन ये क्वेश्चन जस्ट हमने अभी यहाँ इस सिमिलर वे में क्वेश्चन हमने किया है. ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था. जस्ट यहाँ पे अब हम कोई भी वो नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे चीजों को, और हमें यहाँ पे ओनली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अगर हम यहीं पे जाएं वापस हमारे पास, तो ये हमारे पास रिलेशन आया था m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू x बाय l. लेट अस कॉपी इट. यहाँ पे भी हमारे पास सेम ही रिलेशन आएगा, पेस्ट, और बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ नेग्लेक्ट नहीं करना तो x की वैल्यू आ जाएगी m l ओमेगा स्क्वायर बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इसमें भी सेम है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, और देखिए अब की बार स्प्रिंग लाइट है. पिछली बार आपके स्प्रिंग के पास वेट था, मास m था. आपके पास स्प्रिंग लाइट है, तो अब हमने क्या कर दिया है, स्प्रिंग के साथ मास m अटैच कर दिया. तो मास m अटैच करने से आप ये मान सकते हैं कि स्प्रिंग के पास ही वो मास m है. और अब जब ये रोटेट करेगा तो इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि m r ओमेगा स्क्वायर होगा, इक्वल टू होगा k टाइम्स x, और जो r है वो क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू kx. तो ये अगेन आपके पास सेम रिलेशन आ जाएगा. अभी आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कुछ बच्चों को कि सर जो स्प्रिंग है, हम ये भी तो मान सकते हैं कि स्प्रिंग का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा. तो नॉर्मली ऐसा नहीं माना जाता. स्प्रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके एंड पे ही मानते हैं, और उसके हिसाब से ही आप कैलकुलेशंस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A uniform rod of length L being rotated in horizontal plane with constant angular speed about an axis passing through one of its x ends. If the tension generated in the rod due to rotation is Tx and the distance x from the axis, then which of the following graphs depicts it most closely? तो हमें जो रोड के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, उस टेंशन को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. सो व्हाट वी डू, इसके लिए हम प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे, सो दैट हम इसको सोल्व कर पाए और प्लॉट कर पाए. सो लेट अस जूम इट आउट स्लाइटली. लेट अस स्टार्ट. तो सपोज कीजिए आपके पास एक रोड है और उसको रोटेट कर, ये आपके पास एक रोड है और आप इसको रोटेट कर रहे हो अबाउट दिस पॉइंट ए के अराउंड आप इसको रोटेट कर रहे हो. ए को हम 0 0 मान लेते हैं. जो रोड है इसकी लेंथ टोटल हमारे पास L है एज पर गिवन, यानी कि इसका जो एंड पॉइंट है ये हो जाएगा L, 0. सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, अगेन यूजुअल प्रैक्टिस, जिसकी लेंथ dx है और जो कि x डिस्टेंस पे. नाउ इस पार्ट में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी, वो टेंशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, जो ये रिमेनिंग पार्ट है. जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, पूरे सिस्टम को ऐसे रोटेट करोगे, तो जो ये वाला वेट है, ये वाला वेट है, रिमेनिंग वेट है, इससे dx से आगे वाला वेट है, ये इस पे आउटवर्ड एक फोर्स लगाएगा, जिससे जो ये dx वाला पार्ट है इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होगी, और हमें उस टेंशन की ही मेजरमेंट करनी है कि वो टेंशन कितनी होगी. सो अगेन फर्स्ट बेसिक्स कर लेते हैं. जो रोड है हम यूनिफॉर्म रोड मानते हैं. यूनिफॉर्म रोड मींस मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम म्यू बोल देते हैं, इट विल बी मास बाय लेंथ. एंड जो dm हो जाएगा मींस
mass of this small element, dm will be equals to mu dx or m by l into dx। और इस पार्ट पे जो स्मॉल हमारे पास dm आ गया यहाँ पे, इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, आप उसको df बोल सकते हो, इट विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपकी बार dm r ओमेगा स्क्वायर। सो df की वैल्यू हो जाएगी, dm की वैल्यू है m बाय स्मॉल है dx, सेंटर से डिस्टेंस x, सो x स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एज ए होल ये बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाय l इंटू एक्स स्क्वायर dx। एक मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पे, दिस इज ओनली r होता है यहाँ पे, तो x 1 आएगा, सो ये पावर नहीं आएगी। और जो df है यही यहाँ पे टेंशन होगा, सो इसको आप dt भी लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू इंटीग्रेशन लिमिट्स। नॉर्मली इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप x को देखते हो कि x यस 0 टू l तक वेरी कर सकता है, तो आप लिमिट्स यहाँ से 0 टू l तक लेते हो, बट इस सिनेरियो में ऐसा नहीं होने वाला। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख रहे हो, इससे जो रोड वाला ये पोर्ट है, अगर इस पोर्शन को आप ए बोल दो और बाकी वाले पोर्शन को बी बोल दो, तो जो ए वाला पोर्शन है इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस करने का काम किसके पास है? ओनली बी वाले पोर्शन के पास। मीन्स ए पोर्शन के लिए टेंशन जो प्रोड्यूस करने वाला मास होगा वो x इज इक्वल टू एक्स से स्टार्ट होगा और x इज इक्वल टू एल तक होगा। जो dx वाला पोर्शन पे जो टेंशन प्रोड्यूस करेगा वो dx के यहाँ से स्टार्ट होगा और b तक जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट्स 0 से स्टार्ट नहीं होंगी, यहाँ पे लिमिट्स x से स्टार्ट होंगी और l तक जाएंगी, बिकॉज जो टेंशन प्रोड्यूस करने वाला पार्ट है वो सिर्फ इतने मास की वजह से आ रहा होगा इस मास के ऊपर। सो इट विल बी x टू l। तो नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं, टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर l, ये इंटीग्रेशन देगा आपको x स्क्वायर बाय 2, और यहाँ से हमारे पास l और x की लिमिट्स आएंगी, और दिस विल बी m ओमेगा स्क्वायर बाय l, ये 2 डिवाइड में इधर आ जाएगा और इट इज l स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा टेंशन, और x क्या होगा? सेंटर से डिस्टेंस। सो नाउ जब आपका x 0 है, मीन्स आप ओरिजिन के ऊपर टेंशन निकाल रहे हो। जब आप ओरिजिन के ऊपर टेंशन निकाल रहे होगे तो आपको टेंशन क्या मिलेगी? x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट विल बी m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l इंटू एल स्क्वायर, और m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू एल, समथिंग लाइक दिस। तो आपको ये वाला रिलेशन मिलेगा। और जब आप लास्ट पॉइंट पे टेंशन निकाल रहे होगे, जब x इज इक्वल टू l हो जाएगा, ये तो था x इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू l, तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट की वजह से जो टेंशन होगी, या लास्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन होगी, यानी कि कौन से पॉइंट के ऊपर? अगर आप बी पॉइंट के ऊपर टेंशन देख रहे हो, तो बी पॉइंट के ऊपर जो आपको टेंशन मिलेगी, इट डिपेंड्स अपॉन m ओमेगा स्क्वायर 2l l स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू l हो जाएगी, सो l स्क्वायर यानी कि 0, यानी कि 0 पे ये टेंशन होगी और मैक्सिमम वैल्यू पे ये टेंशन होगी। और अगर आप ग्राफ में कंपेयर करें तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आप देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम टेंशन, यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी तो कैंसिल आउट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट पे 0 टेंशन, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये वाला ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे क्या है? डिक्रीमेंट है डिस्टेंस के साथ। तो या तो आपको लीनियर आंसर मिल सकता है, या आपके पास ये स्क्वायर डिक्रीज वाला आंसर आ सकता है। तो अगर आप ओनली इस वैल्यू को देखते हो टी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये एल के प्रोपोर्शनल है, तो इसको देख के आपको लग सकता है कि लीनियर आंसर होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप टेंशन का ओरिजिनल फॉर्मूला देखते हो
ये किस पे डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि टेंशन है जो एक्स स्क्वायर के रूप में गिरेगी, यानी कि स्क्वायर डिक्रीज हमें मिलेगा। सो कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको इंटीग्रेशन की लिमिट बताई कि इसमें x से l की तरफ इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, ना कि 0 to l। वाई? बिकॉज जो ये dx वाला पार्ट है या इससे पहले वाला जो पूरा पार्ट है, इसमें टेंशन प्रोड्यूस करने का काम क्या कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट टेंशन प्रोड्यूस करेगा, ना कि सारा का सारा पार्ट टेंशन प्रोड्यूस करेगा। सो दैट्स वाई हम x to l लिमिट्स लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So a smooth wire of length 2 pi r is bent into circle and kept in a vertical loop। तो ये vertical loop है हमारे पास। A bead can slide smoothly on the wire when a circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter AB, as shown in the figure। The bead is at rest point P। point P पे वो रेस्ट पे है, यहाँ पे हम point P ले लेंगे, ये रहा point P। तो हमें यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो बैलेंस नहीं करेगा, मींस जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके कंपोनेंट्स ही यहाँ पे बैलेंसिंग करने का काम करेंगे, फ्रिक्शन यहाँ पे कोई बैलेंसिंग नहीं करने वाला। ओके, सो लेट अस ड्रॉ। हम नॉर्मल रिएक्शंस और बाकी कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं इसी डायग्राम के ऊपर। सो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारा कुछ ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, और जो वेट है हमारा वो डाउनवर्ड होगा। This will be our mg। I think we have to different color, better contrast के लिए। yes। So this is our mg, और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है वेट की। एल्स अगर हम वेट को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये कंपोनेंट, ये जो पार्टिकल है, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये हमारे पास कंपोनेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन का, जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और ये सेंटर की तरफ जा रहा होगा। तो जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ जा रहा होगा वो प्रोड्यूस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज एन। और अगर हम ये एंगल थीटा लेते हैं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट दिस इज एन कोस थीटा। सो एन ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और जो ये एन ऑफ साइन थीटा जो सेंटर की तरफ जाएगा, एन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आपको ये देखना होगा, ये आर की वैल्यू है r/2, ना कि कैपिटल ये बिग आर, कंप्लीट आर। वाई? बिकॉज जो पार्टिकल है पॉइंट पी है वो ऐसे रोटेट नहीं कर रहा, तो उस सिनेरियो में तो इसकी रेडियस r हो जाती। ये जो आपका वर्टिकल लूप है, ये जैसे एक कॉइन रोटेट होता है, अगर आपके पास एक कॉइन है, आप उसको फ्लोर पे रख के घुमा देते हो, तो ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका रोटेशन एक्सिस यहाँ पे है, तो इसकी रेडियस r/2 है। रेडियस आ जाएगी r/2। और यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा। दोनों को डिवाइड कर दें साइन बाय कोस, तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम r/2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और दिस विल बी r बाय एम आर। ओके, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, we made a mistake। दोबारा से लिखते हैं। सो इट विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू एम जी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। सो नाउ कमिंग टू टेंजेंट थीटा। हमें अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो। टेंजेंट थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, अगर हम ये वाली ट्रायंगल देखें यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ इट। इसको हम विदाउट फिल करते हैं।
सो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, और सपोज यहाँ पे पॉइंट A है कोई, ये पॉइंट हम A ले लेते हैं। ये एंगल हमारे पास थीटा है, दिस इज R एंड दिस इज R/2। यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर R/2, नोट टेंजेंट थीटा। ओके, तो हमें पहले लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, पहले लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ हो जाएगी, ओ ए की लेंथ हो जाएगी √ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4, यानी कि √3r²/4, यानी कि, और इसको आप लिख सकते हो √3r/2। सो ये हो जाती है √3r/2, और यहाँ से अब टेंजेंट थीटा लिखा जा सकता है। परपेंडिकुलर इज r/2, बेस इज √3r/2, सो r/2 √3r/2, so r2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 1/√3 इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। सो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2g/√3r, तो 2g/r√3 सेम 2g/r√3। So this question is completed. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दिस विल बी आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 29 होगा ये, और वी विल डू वन मोर। आई थिंक लेट्स डू a long cylinder vessel of half filled with liquid. When vessel is rotated about its own vertical axis, the liquid rise up near the wall. If the radius of the vessel is 5 centimeter and its rotation speed is 2 rotation per second, सो जो ओमेगा है इट इज 2 रोटेशन पर सेकेंड, यानी कि 4 पाई, एक रोटेशन में 2 पाई होता है, सो 2 × 2 पाई 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू आ गई। देन द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द सेंटर ऑफ द साइड्स इन सेंटीमीटर विल बी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे हमने आपको ये दिखाया था। लेट मी शो विच वन। Where we have missed it. Yes, here it is. So इस क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया था सिमिलर टाइप में कि रोटेशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, और जो प्रेशर डिफरेंस होता है और जो रोटेशन की वजह से हो रहा है, जो हाइट की वजह से हो रहा है, वो दोनों इक्वल होते हैं। h ρg इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2। सो सेम फॉर्मूले का हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं, और यहाँ से जो हाइट के लिए हमने रिलेशन बनाया था, दिस इज अ रिलेशन, ये सेम रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। वहां पे हमने इसको कॉपी कर लिया है, और अब हम अगर यहाँ पे जाएं एंड पेस्ट करें इसको, इसकी जो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये थ्योरी आप हमारे उस क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। वो क्वेश्चन नंबर होगा, फॉर रेफरेंस हम आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं। सो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है, रेडियस यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर, सो हाइट आ जाएगी 16 पाई स्क्वायर इंटू रेडियस इज 5, सो 25 इंटू 10⁻⁻⁴। आंसर आपका सेंटीमीटर में है, और जो जी होता है वो अप्रोक्सीमेटली हम 10 लेते हैं। यहाँ पे पाई स्क्वायर को भी हम 10 लेके मानते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, ये अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इसको। नाउ 25 × 16, so this will give 150 and
25,004. सो 400 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया हमारा इन मीटर, और 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और इसको आप लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। और हमने एक टर्म और मिस कर दिया यहाँ पे, 2 मिस कर दिया हमने यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे डिवाइड 2 आएगा, यहाँ पे डिवाइड 2 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड 2 आएगा। तो फाइनल आंसर इज 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। So a particle moving with a uniform speed in circular orbit of radius r in central force inversely proportional to nth power of the radius. So central force है, proportional है nth power के। If period of the rotation of the particle is t, then हमें time period के लिए फॉर्मूला बनाना है कि time period किसके proportional होगा। So because central force है, तो फोर्स हो जाएगा k टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम आर एन के इक्वल कर देंगे यहाँ पे। एंड बिकॉज सेंट्रल फोर्स कौन सा होता है, ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके लिए आपके पास एज यूजुअल ऑलरेडी रिलेशन होता है, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो इट विल बी k इंटू आर की पावर n इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। और यहां से जो ओमेगा है, ओमेगा को लिखा जा सकता है 2π/t। तो 2π/t ओमेगा होता है, तो रिलेशन बन जाएगा 4πr²/t²। सो k/rn इज इक्वल टू एम आर 4π²/t²। ये r यहाँ पे नीचे आके पावर में ऐड हो जाएगा, तो r+1 हो जाएगा। सो k/rn+1 इज इक्वल टू m 4π²/t²। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इजिली दैट t² इज प्रोपोर्शनल टू r पावर n+1 और t इज प्रोपोर्शनल टू r पावर n+1/2। सो ऑप्शन सी is the right answer. So today we have completed up to question number 30, and this was our third video. So we are doing approximately 10 questions per video and completing in an hour. So hopefully जो हमने आज किया वो आपके लिए थोड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग को उसने इम्प्रूव किया होगा। अगेन अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कोई सजेशंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल हैं, हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहाँ पे नीट और जेई दोनों की वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो इफ यू कैन देन डू मेक सम डोनेशन, इससे हमें बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर और न्यू बुक्स लेने में मदद मिलती है। तो विद दिस, thanks for watching. We will meet in next video.